Hello students, good afternoon. Today we'll take one topic, that is development of English language, and we are going to discuss that how English language is developed and how it has become the most spoken language of the world. Mandarin, English, and third most spoken language is Hindi. So first is, that's a global language, is English language. So how it develops, even in medical, law, right, and technology, everywhere we use English language. So how it is expanded, we are going to discuss here. Before proceeding, I would like to show you this map, and how you just remember that's a map. Here, this is North Sea, and this is Britain, and this side it is Germany, right? So I am going to speak that how, just imagine that what history says. So that is the development of English, right? This is develop sorry development of English language. Okay, so reasons, what were the reasons how English language has become the most important language of the world, right? So that we are going to discuss here. Invasions, right? First reason was invasions, then political shift and cultural exchange. These were the reasons, main reasons. How? Because there were different invasions, right? And then people were going here and there, they were making colonies. So that was the first reason that English is expanded, flourished, right? Number two, political shift. And there were political reason how English, that's a that's a shifting, political shifting is another reason, and cultural exchanges. And then when they reach, and then they make made their colonies, so that culture was exchanged. So these were the reason. I'm reading for you. It's a little bit longer video, but just listen. The history of English language is a fascinating journey that spans over 1500 years, marked by a constant process of invasion, assimilation, and evolution, right? So that's the invasion, and then they assimilate, they absorb, and this way language is developed. It is generally divided into three main periods, right? So then evolution is, that's a, this way language is divided into three main sections. First is, that's a old, middle, and modern, right? Old English was, the period of old English is, that's a Sarka. This is Sarka. This is C, is actually Sarka. Sarka means around 450, right, century to 1100 AD, after death. Then Middle English, circa 1100 to 15 AD. Modern English, circa 1500 to present. So that's history of English language is divided into this way, right? Now come to Old English, Middle English, then Modern English. Old English, that's who plays the role, Anglo-Saxon, right?
Then in Middle English, the big change, sea change, was occurred because of William the Conquest. And third is how same language has become modern English because of some reasons, great vowel shift and other reasons. So one by one we are going to discuss here, right? So let me tell you uh, in Hindi as well, इंग्लिश आज इतनी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज कैसे बन गई कि पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश का बोलबाला हो गया। तो इंग्लिश का जो प्रभाव है वो कैसे बढ़ा, तो हमको उसके बहुत पुरानी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और हिस्ट्री कहती है कि 1005 ईयर्स पहले इंग्लिश की हिस्ट्री स्टार्ट हुई। उसके कई सारे कारण रहे, जैसे कि अटैक करना, कॉलोनीज़ बन रही थी, एक कंट्री दूसरे पे अटैक करती थी, वहाँ जाके रहने लगती थी, तो इन्वेजन्स हुए। फिर पॉलिटिकल शिफ्ट्स हुई, बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजंस और चेंजेस आए। और कल्चर, एक दूसरे की संस्कृति को अडॉप्ट करना और अपनी संस्कृति को वहाँ एक्सपांड करना, क्योंकि लैंग्वेज, आपको पता है कि लैंग्वेज और भाषा और संस्कृति का को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। तो लैंग्वेज एंड कल्चर को एग्जिस्ट है ना, एक साथ रहते हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज का विस्तार हुआ। तो हम अगर उसका इवोल्यूशन, उसका विकास देखेंगे तो लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस: ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश, है ना। ओल्ड इंग्लिश का ड्यूरेशन जो है वो मैंने अभी आपको दिखाया कि 450 सी, 450 सी फॉर सरका, ये सरका रीड करते हैं इसको, इसका मतलब होता है राउंड अबाउट, है ना। तो अराउंड 450 ईयर्स सेंचुरी, 450 सेंचुरी से इसका जो प्रूफ हमें मिलते हैं वो यहाँ से मिलते हैं। और ये जो ओल्ड इंग्लिश है वो 450 से बनी और 1100 एडी तक इसका राज्य रहा, है ना। तो आप ये मानो कि करीब 500-600 साल ये लैंग्वेज रही। उसके बाद 1100 से 1500, 400 साल तक मिडिल इंग्लिश का बोलबाला रहा। और यही लैंग्वेज फिर बाद में चेंज होके मॉडर्न इंग्लिश कहलाई, जो आज हम मॉडर्न इंग्लिश पढ़ते हैं। इसमें भी 2 क्लासेस है, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश और लेट मॉडर्न इंग्लिश, तो उसको अभी हम देखेंगे। एक्चुअली लैंग्वेज इज़ द मैटर ऑफ फ्लक्स, वो कभी भी स्टैटिक नहीं है, लैंग्वेज चेंज होती जाती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। तो कैसे होती है अभी मैं बताती हूँ आपको। तो ये है इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, ऐसे चेंज हुई। अब हम देखेंगे कि अगर हम लैंग्वेज को चेंज करें, हाँ, ये डायग्राम, ये मैप आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं भी बताती हूँ इसको मैंने पहले ऐड कर दिया। देखिए, लैंग्वेज कभी भी स्टैटिक नहीं है। अगर आपने देखा होगा वर्ड्स, पहले पोएट्री में इवन 16th सेंचुरी में दाऊ यूज़ होता था, अब यू यूज़ होता है। पहले डथ यूज़ होता था, है ना, पहले डथ यूज़ होता था, अब डथ, है ना, और अब इसी को डज कहते हैं हम। तो ऐसे चेंजेस आते हैं। लैंग्वेज, हमेशा आपने एक वर्ड पढ़ा होगा डिक्शनरी, जब देखते होगे तो लिखा रहता है आर्केइक वर्ड, है ना, ऐसा लिखा रहता है, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा होगा ओल्ड फैशन, डिक्शनरी में लिखा होगा, वर्ड्स के ब्रैकेट में लिखा रहता है ओल्ड फैशन, है ना, या आर्केइक। आर्केइक क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वर्ड्स, बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, पर रिप्लेस होते जाते हैं, है ना। तो चलिए अभी हम फर्स्ट फेज देखेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज इज इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, है ना। तो यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश कैसे शुरू हुई? हिस्ट्री सेज दैट, आई एम रीडिंग फॉर यू, देन आई विल एक्सप्लेन दिस वन। दैट्स old English origin is that English is a West Germanic language, means English West Germanic language से आई है. Its roots can be traced to the languages of the Anglo-Saxon Germanic tribes. Anglo-Saxons है ना, एंड जर्मेनिक ट्राइब्स, इनका मिलन हुआ. इसमें एंग्लो सेक्सन में कौन? एंगल्स, सेक्सन्स एंड जूट्स.
ये जर्मेनिक ट्राइब्स थे हु माइग्रेटेड टू ब्रिटेन फ्रॉम व्हाट इज़ नाउ नॉर्दर्न जर्मनी। तो ये ब्रिटेन में इन्होंने माइग्रेट किया और नॉर्दर्न जर्मनी, जिसको अभी हम नॉर्दर्न जर्मनी और साउथ सदर्न डेनमार्क एंड द नॉर्थलैंड्स, ये इन प्लेसेस पे इन्होंने अटैक किया। इन द फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरी AD they displaced the indigenous Celtic languages and British Latin। तो क्या हुआ कि ओल्ड इंग्लिश ऑल्सो नोन एज एंग्लो सेक्सन was a highly inflected language, meaning that word ends with inflections were crucial for indicating grammatical function like case, gender and number। तो क्या हुआ कि ओल्ड इंग्लिश जब आई तो वो 3 जर्मैनिक ट्राइब्स थे जो थे एंगल, सैक्सन एंड जूट्स। इन्होंने कहाँ पे धावा बोला? इन्होंने ब्रिटेन में धावा बोला। मैं अभी आपको मैप में दिखाती हूँ। और फिर उसके बाद जो कि अभी आज के डेट में हम कह सकते हैं किस रीजन में, नॉर्थ जर्मनी और सदर्न डेनमार्क में, राइट। तो वहाँ पे इन्होंने धावा बोला 5th और 6th सेंचुरी में। और फिर वहाँ के जो लोग थे, इंडिजिनस लैंग्वेज उनकी केल्टिक लैंग्वेज थी, तो उसको इन्होंने वहाँ की कुछ वर्ड्स उनके अपने रहे और कुछ यहाँ से मिक्स हो गए। अगर हम ओल्ड इंग्लिश की बात करें तो वो बाद में उसको एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज इंग्लिश भी कहते हैं। और वो बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लेक्टेड थी, मतलब कि वर्ड जो थे, एंडिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा जिसमें हम केस पढ़ते हैं, ही, शी और जेंडर, है ना, ये सारे जो थे वो नंबर्स, इसमें बहुत चेंजेस आए। वो कैसे आए, कैसा हुआ? जैसे कि क्रिश्चियनाइजेशन भी इंग्लैंड में 7th और 8th सेंचुरी में आ गया था, तो उसके कारण लैटिन भी आया यहाँ पे। और ओल्ड नॉर्स 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी में वाइकिंग ने भी फिर से उसके बाद इन्वेजन किया, अटैक किया, और उन्होंने किसको, ओल्ड नॉर्स जो वर्ड्स थे वो लेकर आए और किसको खदेड़ दिया, इनको, पुराने वालों को, है ना। तो मैं इसको ऐसे बताती हूँ आपको, आप इसको ऐसे समझो कि 450 सेंचुरी से इसकी हिस्ट्री है। और पहले ये तीनों जो वो थे ट्राइब्स थे, ये कौन थे? एंगल्स, सैक्सन और जूट। इन्होंने 5th सेंचुरी में 3 जर्मैनिक ट्राइब्स, है ना, तो ये जो तीनों जर्मैनिक ट्राइब्स थे इन्होंने धावा बोला, है ना, ये 3 जर्मैनिक ट्राइब्स। तो ये तीनों जर्मैनिक ट्राइब्स ने, ये जर्मैनिक ट्राइब्स, इन्होंने धावा बोला और ये चले गए ब्रिटेन। मैं अभी मैप में दिखाती हूँ आपको। और सबसे, अगर हम ओल्ड इंग्लिश को देखें तो उसमें क्या था कि हाईली इन्फ्लेक्टेड थी, है ना, ग्रामर जो थी वो बहुत ज़्यादा चेंज थी, राइट। और वो थी वर्ड एंडिंग जो ग्रामर की, उस पर बहुत जोर दिया जाता था। तो ये सारे थे। और लैटिन का बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ। उसका रीज़न था क्योंकि बाइबल आ गई थी, है ना, तो लैटिन का भी बहुत ज़्यादा उसमें इन्फ्लुएंस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि क्रिश्चियनिटी अराइवल, क्योंकि क्रिश्चियनिटी आ गई थी, है ना, तो ये रीज़न रहा। फिर 8th सेंचुरी में ओल्ड नॉर्थ और ओल्ड इंग्लिश, ये सारे चेंजेस आते हैं। पहले मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कि कैसे चेंज आए। देखो, ये नॉर्थ सी से चलकर जर्मैनिक इन्वेशन हुए, है ना, और यहाँ पर क्या हुआ, जूट्स, एंगल्स और सेक्सन्स, ये तीनों मिलकर इन्होंने कहाँ धावा बोला, इन्होंने ब्रिटेन में धावा बोला, ब्रिटेन में, है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे धावा बोला, दे अटैक, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह पे धावा बोला। इसको अगर हम एक और मैप में देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
ये तीनों जो थे ट्राइब्स जो थे, इन्होंने इस तरह से जूट एंगल्स और सेक्शन, है ना। तो यहाँ पे ये जो है वो एंगल सेक्शन जूट्स फ्रॉम अर्ली 400 लिखा है इसमें, आप 450 अराउंड, है ना, सेंचुरी में ये तीनों 1 2 और 3 ये आए, ये नॉर्थ सी से चल के आए और तब ये ब्रिटॉन्स ब्रिटेन नहीं था इसका नाम, ये ब्रिटॉन्स कहलाता था ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये आगे और फिर इन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज यहाँ पर, इनमें सबसे ज़्यादा जो थे वो एंगल्स बहुत पावरफुल थे, तो सेक्शन भी थे और जूट्स भी थे, पर तीनों आए थे साथ में, तो इनकी इंग्लिश सबसे ज़्यादा यहाँ पर चलने लगी, मतलब इनकी लैंग्वेज का बहुत इन पे असर हुआ। लेकिन जो इनकी लोकल लैंग्वेज थी वह, उसमें ये लैंग्वेज भी मिल गई और फिर बन गई ये जो इंग्लिश इंग्लिश करके थी, वो क्या थी, वो थी इंग्लिश, है ना। तो उसको कहा गया, मैं बताती हूँ उसको, उसको कहा गया इंग्लिश, दैट वाज नोन एज इंग्लिश इन, वेट अ मिनट बेटा, या दैट वाज नोन एज इंग्लिश, इंग्लिश, ये याद रखना, इंग्लिश, राइट, ऐसे करके ये लैंग्वेज बनी। तो ये सॉरी, ये ओल्ड इंग्लिश की हिस्ट्री है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ पर ये ओल्ड इंग्लिश थी, है ना। अब इसको फिर से बता दूँ आपको, ओल्ड इंग्लिश मतलब सबसे पहला फर्स्ट अटैक इन 400 सरका मीन्स अराउंड 400 सेंचुरी, दैट्स आर 3 ट्राइब्स जर्मैनिक, है ना, 3 जर्मैनिक ट्राइब्स। कौन कौन से जर्मन से आए हुए ट्राइब्स, है ना, कौन कौन से, एंगल्स, सेक्शन एंड जूट, उन्होंने दे अटैक टू ब्रिटेन, एट दैट टाइम इट वाज नोन एज ब्रिटॉन, है ना। और इंग्लैंड, इंग्लैंड को बोलते थे इंग्लैंड, है ना। तो वहाँ अटैक किया और उसमें सब में इसमें एंगल्स सबसे ज़्यादा पावरफुल थे तीनों ट्राइब्स में। तो एंगल्स ने की ज़्यादा, मैंने उनकी लैंग्वेज का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, समझ में आया ये। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट, मिडिल इंग्लिश। फिर ये, अच्छा इसमें एक और बात ध्यान रखिए आपकी, ये भी हुआ साथ में इसमें इन्होंने इन्वेशन किया, लेकिन इसमें आपको ये भी ज़रूरी है बताना कि क्रिश्चियनिटी आ गई, है ना, क्रिश्चियनिटी आ गई और वाइकिंग इन्वेजन भी हुआ। वो कब हुआ, 8 से, ये लोग आए थे यहाँ पे, है ना। तो पहले यहाँ 5th to 7th सेंचुरी तक तो ये राज करते रहे तीनों ट्राइब्स, ये वाले ट्राइब्स, है ना। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद, क्योंकि इनका जो टाइम था वो क्या था, इनका टाइम था 450 टू 1100, है ना। तो आप ये मानो कि 650 ईयर्स, राइट, इतना इनका इतना लंबा। तो इसमें लास्ट में वाइकिंग आ गए, वाइकिंग ने इन्होंने अटैक किया और फिर ये अपने साथ कौन सी लैंग्वेज लाए, ये ओल्ड नॉर्स लाए और ओल्ड इंग्लिश जो कहला रही थी वो मिक्स होके, और चूँकि इसमें लैटिन, क्रिश्चियनिटी में लैटिन ज़्यादा वर्ड्स यूज़ होते थे, तो उसका इन्फ्लुएंस हुआ और इस तरह ये ओल्ड इंग्लिश कहलाई। जो आज की जनरेशन है, नई जनरेशन, they are not able to रीड ओल्ड इंग्लिश, क्योंकि अब वो इतनी बदल चुकी है, जबकि वहीं से आई है। वहाँ के लोकल लोग ओल्ड इंग्लिश अब आज उसको पढ़ नहीं सकते। तो ये हुआ। फिर मिडिल इंग्लिश, दूसरा, इसके बाद आते हैं हम मिडिल इंग्लिश। तो दूसरा फेज़ जो था वो मिडिल इंग्लिश, और मिडिल इंग्लिश जो थी वो थी 1100 सरका, है ना, 1100 सरका से 1500 एडी। तो 1100 से 1500 एडी, इसमें क्या हुआ, सबसे बड़ा रोल था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का। ये आए 1066 में आए ये, है ना, मतलब 11 के आसपास आ गए थे ये।
और इसमें सबसे बड़ा जो किंग था वो था विलियम द कॉन्क्वेस्ट। तो अभी तक तो वहाँ फिर ओल्ड इंग्लिश बन गई, चलने लगी, वाइकिंग आ गए, फिर और चेंज आया, पर वो ओल्ड इंग्लिश ही चल रही थी। अब वही ओल्ड इंग्लिश मिडिल इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट हो गई? तो वो कैसे हुई? क्योंकि ये विलियम द कॉन्क्वेस्ट अपनी आर्मी लेके गया और उन्होंने वहाँ पे उनके ऊपर वाइकिंग्स और उनके ऊपर अटैक किया। तो जब वो वहाँ पे गया तो वो नेचुरली अपनी एक और नई लैंग्वेज लेकर गए। तो वो जो नई लैंग्वेज थी वो क्या थी? इट वॉज नॉर्मन फ्रेंच, है ना। तो नॉर्मन फ्रेंच को लेकर गए ये। अब क्या हुआ कि ये नॉर्मन फ्रेंच जो थी वहाँ पे फ्रेंच का बोलबाला होने लगा, क्योंकि ये अपने साथ फ्रेंच, तो वो स्टैंडर्ड इंग्लिश कहलाने लगी। तो वो जो कोर्ट लैंग्वेज है, गवर्नमेंट थी और रूलिंग पार्टी थी, जो रूलिंग जो क्लास थी, वो लोग तो मतलब वो एक स्टैंडर्ड क्लास, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जिसमें एक एलीट क्लास, तो एलीट में ये सब आते थे, कोर्ट और गवर्नमेंट और रूलिंग क्लास। तो ये क्या बोलते थे? ये फ्रेंच बोलते थे, और जो कॉमन लोग थे वो बोलते थे इंग्लिश। ऐसा हुआ। तो अब मतलब एक तरह से इंग्लिश को थोड़ा हीन मैंने क्या कहना चाहिए कि इंग्लिश वॉज बी लिटिल बाय दीज पीपल, राइट। उसका स्टैंडर्ड बहुत डाउन हो गया और ये कहा गया कि भाई एलीट क्लास तो फ्रेंच यूज़ करती है और कॉमन पीपल, इंग्लिश इज़ यूज बाय कॉमन पीपल। अब यहाँ पे चलता रहा ये, और फिर एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज आता है, और वो ड्रामेटिक चेंज आता है क्योंकि of course, English, the French was used by court people, government, and ruling party. But then there's a dramatic change. All of a sudden, that change was, that's a law. अभी तक जो कोर्ट लैंग्वेज है वो तो कर रहे थे, लेकिन जो लॉ था, आर्ट था और फूड था, तो फॉर दीज पर्पसेस इंग्लिश केम बैक। फिर से इंग्लिश आ गई। ओल्ड लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश जो इंग्लिश जो थी वो अचानक से वापस आई, और जितना भी नियम कानून थे वो, और आर्ट मतलब लिटरेचर पार्ट, ड्रामा, उस समय ड्रामा तो नहीं होता था, पोएट्री एंड ऑल, तो ये जो सब कुछ लिखा जा रहा था, पोएट्री लिखी जाती थी उस समय, तो वो सारा इट वॉज रिटन इन इंग्लिश। पेंटिंग्स का एक्सप्रेशन, उसका लिटरेचर, जितना भी आर्ट था विच वॉज यूज इन इंग्लिश, धीरे धीरे वो अपने आप ही, तो दो सेक्शंस बट गए। मतलब कोर्ट लैंग्वेज थी वो फ्रेंच में थी, फिर उसके बाद गवर्नमेंट जितना ऑफिशियल था, ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज, वो फ्रेंच थी, रूलिंग क्लास वो फ्रेंच, तो ये एक एलीट क्लास कहलाती थी। लेकिन धीरे धीरे दूसरा सेक्शन जो था, जिसमें रेसिपीज़ थी, फूड था, लॉ था, नियम कानून जितने भी, है ना, और आर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, आर्ट, क्योंकि ऑथर ही का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, ऑथर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप एनी लैंग्वेज। तो और वहाँ फिर जितना लिटरेचर है वो भी इंग्लिश में लिखा जाने लगा। तो अब इंग्लिश एक नए फॉर्म में वापस आई। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि वो ओल्ड इंग्लिश नहीं थी, अब वो मिडिल, वही ओल्ड इंग्लिश क्यों मिडिल इंग्लिश बन गई? क्योंकि वहाँ पे ये जो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट वाला, तब तक ये अ, ऐसा एकदम फिक्स ग्रामर नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि ग्रामर फिक्स होने लगी, और एक स्टैंडर्ड समझो बन गया। और फिर 1360 में, 1360 में जॉफ्री चौसर जब आए, तो उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखा। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ था, बिकॉज यू नो दैट जॉफ्री चौसर इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एंड फादर ऑफ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। तो फिर उन्होंने जब कैंटरबरी टेल्स लिखी, ही हैज़ रिटन कैंटरबरी टेल्स, इन विच ही हैज़ रिटन 124 टेल्स। हाँ, whoever tales were written in the form of पोएम के फॉर्म में लिखी गई। तब तो स्टेटमेंट वाइज प्रोज तो आया नहीं था, जो भी एक्सप्रेशन था वो सब
पोइट्री फॉर्म में हो, लेकिन वो टेल्स पोइट्री फॉर्म में होती थी, जिसमें से आज भी सिर्फ 24 टेल्स जो है विच आर लेजिबल, रेस्ट ऑफ द टेल्स आर नॉट लेजिबल, है ना। तो ये हुआ, तो ये बन के आई मिडिल इंग्लिश, ठीक है। अब हम मूव करते हैं मिडिल इंग्लिश के लिए। मैं थोड़ा सा लेट मी टेल यू अबाउट मिडिल इंग्लिश, दैट्स व्हाट्स द लिटरेचर says that middle English. So middle English, I'm reading for you, just listen. That's a middle English. द कॉन्क्वेस्ट बाय विलियम द कॉन्क्वर, बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसको कि जो कॉन्क्वेस्ट था विलियम द कॉन्क्वरर ऑफ नॉर्मैंडी, है ना, ये नॉर्मैंडी का था, फंडामेंटली ऑल्टर्ड द इंग्लिश लैंग्वेज एंड फॉर सेवरल सेंचुरीज द रूलिंग क्लास स्पोक एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच। बहुत साल तक एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच चलती रही, वाइल द कॉमन पीपल कंटिन्यूड विद इंग्लिश ओनली, वो इंग्लिश बोलते थे। आई टोल्ड यू क्लास सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू एलिट एंड कॉमन, है ना, एलिट जो थे वो फ्रेंच बोलते थे, कॉमन इंग्लिश बोलते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, द ब्लेंड, अब वोकैबलरी शिफ्ट बहुत बड़ा रीज़न था। तो द ब्लेंडिंग ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस लेड टू अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेंच एंड लैटिन वोकैबलरी इनटू इंग्लिश। तो क्या हुआ कि जो फ्रेंच और लैटिन वोकैबलरी है वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, दो लैंग्वेजेस को, फ्रेंच के और लैटिन के, जिसमें वर्ड रिलेटेड टू गवर्नमेंट, लॉ, आर्ट, रिलीजन, है ना, इसमें बहुत सारे वर्ड्स जो थे वो इंग्लिश के यूज़ होने लगे, जैसे पार्लियामेंट, जस्टिस, लिटरेचर, ये सब फ्रेंच ओरिजिन वर्ड्स हैं, तो ये तब यूज शुरू हुए, है ना। फिर दूसरा रीज़न था ग्रामेटिकल सिंप्लीफिकेशन। तो उन्होंने इस पीरियड में मिडिल इंग्लिश में इन्फ्लेक्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर ग्रेटली सिंप्लीफाइड और डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। तो ओल्ड इंग्लिश अब धीरे धीरे टफ होने लगी, लोगों में अवेयरनेस आने लगी, तो उन्होंने ग्रामर को एक स्टैंडर्डाइज ग्रामर सेंटेंस बनाया, और ग्रामेटिकल जेंडर वॉज लॉस्ट उसमें, कैसा, and word order became more fixed to convey meaning, moving closer to structure ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे कहा कि भाई सब अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, किसी का कुछ फिक्स नहीं है, तो धीरे धीरे सब्जेक्ट वर्ड ऑब्जेक्ट का एक ऑर्डर फिक्स हो गया। अब लिटरेरी सिग्निफिकेंस क्या रहा इसका, मिडिल इंग्लिश बिकेम अ प्रोमिनेंट लिटरेरी लैंग्वेज। तो फिर अब धीरे से लिटरेरी लैंग्वेज, मैंने बोला ना ऑथर का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो जब लिटरेचर, लिटरेरी पीपल यूज, जिसका एग्जाम्पल है कैंटरबरी टेल्स वॉज रिटन इन इंग्लिश, तो फिर क्या हुआ कि ये प्राइम लैंग्वेज बन गई, और अब एक स्टैंडर्ड सेट हो गया, ठीक है। तो ये दिस इज मिडिल इंग्लिश। अब हम मूव करते हैं लास्ट फेज विच इज़ कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, मॉडर्न इंग्लिश कहाँ से कहाँ तक है, circa 1500 टू प्रेजेंट, मतलब 1500 सेंचुरी से समझिए आज तक मॉडर्न इंग्लिश बोली जाती है, जिसमें मॉडर्न इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना, दैट्स अ अर्ली मॉडर्न और लेट मॉडर्न इंग्लिश। तो इसको समझने के लिए आपको अर्ली मॉडर्न हम पहले देखेंगे। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में सबसे बड़ा चेंज, अभी तक वही मिडिल इंग्लिश चल रही थी, अब मॉडर्न इंग्लिश आ गई। तो अर्ली मॉडर्न में क्या हुआ, सबसे बड़ा रीज़न जो था वो था ग्रेट वॉवल शिफ्ट, है ना। ये जो बहुत लंबा लंबा, देखो उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आपने ओल्ड सॉन्ग सुने होंगे, तो वो जो एक सॉन्ग है, हिंदी सॉन्ग बड़ा फेमस है, मेरे पिया गए परदेस वहाँ से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है, क्योंकि इट वॉज द टाइम व्हेन टेलीफोन वॉज द सोर्स वेयर यू कैन कनेक्ट विद वन अनदर। तो टेलीफोन और वो गाना और उस समय की मूवीज़ अगर आप याद रखो, तो इसी तरह के डायलॉग्स हिंदी में चलते थे। ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसे बनावटी, आज हम उसको बनावटी कह रहे हैं, इट वॉज नेचुरल दैट टाइम।
तो ऐसे खींच खींच के बोला जाता था, ठीक है। कैसे कि जैसे अगर आपको पिताजी ने बुलाया है, ऐसे बोलते थे। तो ये जो इस तरह का टोन था, सेम हैपेंस इन इंग्लिश ऑल्सो। दैट्स अ मिडिल इंग्लिश वाज स्पोकन दिस वे, and then middle english was used this way. That's a vowel. There are two vowels, short vowel and long vowel. So long vowels were used frequently. लंबे लंबे शब्द बहुत प्रेस कर करके, जैसे एक होता है गर्ल, है ना, और एक होता है गट। तो गट इज शॉर्ट वॉवल। एक होता है पिक और एक होता है पीक, राइट। तो इन्होंने ये शिफ्ट चेंज हो गई, मतलब ये वॉवल शिफ्ट सबसे बड़ा रीज़न रहा कि वो जो मिडिल इंग्लिश थी वो मॉडर्न में क्यों हुई, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा रीज़न इज ग्रेट वॉवल शिफ्ट, है ना। तो ये याद रखना, ये ग्रेट वॉवल शिफ्ट, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया। और फिर एक स्टैंडर्ड इंग्लिश बनने लगी। उसका बहुत बड़ा रोल ये भी था कि प्रिंटिंग मटेरियल आ गया लोगों के हाथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये याद रखना, प्रिंटिंग प्रेस बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया। प्रिंटिंग प्रेस आने से जो मैनुअल राइटिंग थी, टाइपिंग थी, वो धीरे धीरे क्या हुआ, टाइपराइटर में ही तो रीच लोगों के साथ, एक तो महंगी भी और बहुत लिमिटेड लोगों के हाथ में थी। तो जब बाइबल भी, इवन जब बाइबल भी ट्रांसलेट होने लगी, कई ऑथर्स ने किया, तो वो कुछ लोगों के हाथ में जाती थी, क्योंकि टाइपिंग मैनुअल थी और फिर कॉस्ट ज़्यादा होती थी, तो सबके हाथ में नहीं आती थी। पर जब प्रिंटिंग प्रेस आई, तो प्रिंटिंग प्रेस में क्या हुआ, सस्ता और बहुत लोगों के हाथ में वो मटेरियल जाने लगा। तो लोग पढ़े लिखे होने लगे, बाइबल ही पढ़ते थे लेकिन पढ़ना आने लगा लोगों को। तो यहाँ पे ये जो विलियम कैक्सटन है, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया प्रिंटिंग प्रेस का। और उसके बाद से जब धीरे धीरे एक स्टैंडर्ड और ज़्यादा बढ़ गया, जिसको उन्होंने कहा कि क्या स्टैंडर्डाइज हुआ, सिंगल डायलेक्ट, कि अब आपकी लैंग्वेज नहीं, एक कॉमन लैंग्वेज है जिसमें वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो करना, या एक, ये तो एक रूल है। ऐसे सो मेनी रूल्स वर इन्वेंटेड, और धीरे धीरे ग्रामर रूल्स फिक्स होने लगे। तो लंदन जो है वो मॉडर्न पब्लिशर्स के लिए, कि भाई वहाँ के पब्लिशर्स बहुत फेमस हैं, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, अच्छे ऑथर्स की बुक्स पब्लिश करते हैं। दिस वे दैट्स अ लैंग्वेज वॉज स्टैंडर्डाइज। और फिर यहाँ पर किंग जेम्स की बाइबल, जो बहुत लोगों के हाथ में प्रिंटिंग प्रेस के कारण पहुंची, शेक्सपियर का वर्क, राइट, 37 ड्रामा और प्लेज कह सकते हैं। शेक्सपियर हैज़ रिटन 37 प्लेज एंड 154 दैट्स अ सॉनेट्स, और ऑल आर वर्ल्ड फेमस, राइट। तो ये सारे चेंजेस 16th सेंचुरी तक होने लगे। आपको पता है शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1623, राइट। तो वहाँ से जब वेन शेक्सपियर बॉर्न, एंड इट वॉज द टाइम एलिजाबेथन एरा, लिटरेचर में अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वी सी, so that era was when Shakespeare was born. It was Shakespearean era or Elizabethan era, and there is a very flourished golden period of English literature. So literature means author gives a lot टू द लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज की को एनरिच करने में ऑथर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि इस सब के कारण वॉवल शिफ्ट तो हुआ ही हुआ, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, वो भी आ गया। और इस सब के कारण लैंग्वेज एक अच्छे फॉर्म में आने लगी, स्टैंडर्ड बन गया। तो ये जो टाइम था, इट वाज अर्ली मॉडर्न। अर्ली मॉडर्न जो इंग्लिश थी वो, दिस वाज नोन एज अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। अब अर्ली मॉडर्न से लेट मॉडर्न जो अभी है, वो कैसे हुआ भाई, वो लेट मॉडर्न कहाँ से आया? तो लेट मॉडर्न का रीज़न ये रहा कि ये लेट मॉडर्न है ना। लेट मॉडर्न मतलब 18th सेंचुरी से आज तक अराउंड, है ना, सरका 1800, अराउंड 1800 से आज तक। यहाँ पर चेंज, वही लैंग्वेज फिर और दूसरे फॉर्म में क्यों आई? क्योंकि उसका रीज़न था वोकैबलरी। वोकैबलरी क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, राइट। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ गई,
और फिर ब्रिटिश अपना एम्पायर फैलाते रहे और बहुत मैक्सिमम प्लेसेस में ब्रिटिश का अधिकार हो गया. ब्रिटिश हैड expanded their what we can say that emperor है ना, and then they were occupied maximum part land of the earth, ऐसा कह सकते हैं. तो बहुत ज़्यादा जब इनका इतना एक्सपांशन हुआ और इन्होंने अपना अ, जो साम्राज्य है वो इतना फैलाया, तो उसमें क्या हुआ कि इंग्लिश जो थी वो बहुत बड़ा चेंज आया है उसके कारण. क्योंकि ह्यूज प्लेसेस में, मतलब मैक्सिमम प्लेसेस में इंग्लिश पीपल वर लिविंग, दे वर एक्सपांडिंग देयर कॉलोनीज़, है ना. इंडिया में भी आए, बहुत सारी जगह में रूल किया, तो उसके कारण इंग्लिश बहुत ज़्यादा, इंग्लिश का एक्सपांशन हुआ. और फिर इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोले जाने लगी. एक रीज़न तो ये था. सेकंड रीज़न था क्योंकि अब जब टेक्नोलॉजी आती है तो न्यू वर्ड्स फॉर टेक्नोलॉजी, इट नीड्स न्यू वर्ड्स, तो न्यू वर्ड्स वर इन्वेंटेड, न्यू वर्ड्स वर यूज, है ना. दूसरा ब्रिटिश कॉलोनिज्म, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. एंड थर्ड रीज़न इज दैट्स अ इंग्लिश, people were started speaking English, and that's why it has become global language, है ना. तो मेजर रीज़न जो रहे वो क्या रहे, वो रहे टेक्नोलॉजी, कल्चरल एक्सचेंज. तो वहाँ गए तो वहाँ के लोगों से भी उन्होंने वर्ड्स बोरो किए, तो और एनरिच हो गई. संस्कृत के कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश में, आपने यू मस्ट हैव लिसन दैट्स कॉइन वर्ड्स एंड लिटरेरी सॉरी बोरोइंग वर्ड्स, है ना. तो कुछ वर्ड्स ऑथर कॉइन करते हैं, कुछ लिटरेरी बोरो करते हैं दूसरे उससे, है ना, दूसरी लैंग्वेजेस से बोरो करते हैं. इस तरह से लैंग्वेज बड़ी एनरिच होती गई. और मीडिया, और फिर मीडिया में बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोली जाने लगी. तो दैट इज़ वाई दैट्स इंग्लिश इज हैज़ बिकम द फर्स्ट द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, है ना. But before ending this video, I would like to tell you that at the same time, though English is a global language, it's a most spoken language of the world, but at the same time, Hindi, that's a Madhya Pradesh has taken initiative, and then medical, right? That's a medical and engineering have started in Hindi, right? So Hindi medium students can go with medicine, right, and with the engineering. So it's a good move. However, language, if you learn language, definitely your opportunity, you are in a very good platform where you can avail opportunity. So uh, that was the reason. That is why mm, we encourage इंग्लिश, राइट. क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीखोगे तो आपका एक दायरा है, दैट्स अ लिमिटेशन, दैट्स योर opportunities. You can have a lots of opportunities. The more different language, if you have command, and you are what we can say that if you have a hold command over different languages, so then you can, your um, प्लेटफॉर्म इज़ वेरी बिग और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. बट देन एट द सेम टाइम आई वुड टेल यू दैट इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश के इतने रीज़न रहे. तो लास्ट में मैं कंक्लूड कर रही हूँ उस सेशन वीडियो को. एंड बिफोर प्रोसीडिंग एंडिंग, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इंग्लिश, we have seen that English is development of English can be divided into three phases: Old English, Middle English, and Modern English, है ना. Old English was started from circa 450 century to 1100 AD, है ना. in this time, three Germanic tribes, जर्मन के tribes, they invaded टू ब्रिटेन, है ना. नॉर्थ सी से आते हैं और ब्रिटेन में हमला करते हैं. कौन कौन आए थे उसमें? एंगल्स, सेक्सन एंड जूट्स. तो ये इसमें एंगल्स बड़े पावरफुल थे. ये तीनों एक साथ आते हैं और पहला रीज़न था कि इन्होंने इन्वेजन किया.
तो ब्रिटॉन, इट वॉज नॉट ब्रिटेन, इट वॉज ब्रिटॉन, और इंग्लैंड को उस टाइम कहते थे इंग्लालैंड। तो वो जो वहाँ के ट्राइब्स थे, जब इन्होंने उन पे अटैक किया तो वो सीधे साधे थे, इसमें नहीं, मैंने अभी आपको बताया, पर दे वर वेरी इनोसेंट पीपल। तो इन्होंने ये जो तीनों ट्राइब्स थे, इसमें एंगल्स स्पेशली, इन्होंने उनको खदेड़ दिया, और वो बेचारे शिफ्ट होके पूरे के पूरे लोग ब्रिटेन के उस तरफ जाके दूसरे प्लेसेस में रहने लगे, और इनका बोलबाला हो गया, और इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राज किया, इनकी जनरेशन्स वहाँ पे रूल करती रही। फिर अचानक 8th सेंचुरी में आ, किसका ये जो थे, आ, कौन, वाइकिंग, राइट, उन्होंने इन्वेजन किया। और वहाँ से वाइकिंग्स जब आए, तो वाइकिंग के आने से जो अभी एक ओल्ड इंग्लिश फॉर्म हो गई थी, क्योंकि कुछ तो लोकल लोगों का लैंग्वेज, परंतु इनकी लैंग्वेज, ये ज़्यादा लोग थे, इनकी आर्मी ज़्यादा थी, तो इन्होंने उसको डोमिनेट किया, और वो एक नई लैंग्वेज बनी जिसका नाम बना इंग्लिश, इंग्लिश करके। तो वो ओल्ड इंग्लिश कहलाई। लेकिन उसी ओल्ड इंग्लिश में ये जो थे, ये वाइकिंग्स जो अपने साथ ओल्ड नॉर्म्स, राइट, तो ये ओल्ड एक लैंग्वेज, और ये भी अपने साथ कुछ वर्ड्स लाए, और फिर वो ओल्ड इंग्लिश चलती रही। अब वहाँ चल ही रही थी ओल्ड इंग्लिश कि अचानक विलियम द कॉन्क्वेस्ट, उन उसकी आर्मी आई, और इनके इनके ऊपर वो आके अटैक किया उन्होंने ब्रिटेन में। तो जब उन्होंने अटैक किया विलियम द कॉन्क्वेस्ट ने, तो क्या हुआ कि वो अपने साथ फ्रेंच लेकर आए थे। वो फ्रेंच स्पोकन थे, फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन थे, और उन्होंने जब फ्रेंच लेकर आए, तो क्या हुआ कि फ्रेंच स्पीकर्स ने अपना एक वहाँ इतना बोलबाला हो गया उनका कि जितनी लॉ, मतलब लॉ यानी पढ़े, कोर्ट लैंग्वेज, सॉरी, तो वो फिर गवर्नमेंट और रूलिंग क्लास, ये बड़ी एलीट क्लास कहलाती थी, और इन लोग ने फ्रेंच बोलना शुरू कर दिया, और इंग्लिश वॉज डोमिनेटेड बी लिटल। बहुत कॉमन लोग बोलते थे, और अच्छा नहीं माने जाते थे, पढ़े लिखे लोग ऐसे मानते थे कि फ्रेंच बोलते हैं, और बोलते भी थे। तो सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। लेकिन करते करते अचानक एक ड्रामेटिक चेंज आया, और जो लॉ था, नियम कानून, लॉ एंड ऑर्डर, और ये, और फूड, और स्पेशली लिटरेचर पार्ट, वो ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्ट राइटिंग इन इंग्लिश। तो जब वहाँ पे उन्होंने जब इंग्लिश बोलना शुरू, पर ये वाली जो इंग्लिश थी, ये ओल्ड इंग्लिश थे, थोड़ी चेंज इंग्लिश थी, इसीलिए इसको मॉडर्न मिडिल इंग्लिश कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स मिक्स थे, है ना, और एक नए फॉर्म में ये इंग्लिश आई थी। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन, और धीरे धीरे एक वर्ड ऑर्डर फिक्स हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, और ऐसे कुछ चेंजेस आए। तो इसके कारण ये जो ओल्ड इंग्लिश है वो उसको मिडिल इंग्लिश बोला जाने लगा, क्योंकि वो एक नए फॉर्म में वापस आ गई, और फिर से मिडिल इंग्लिश का बोलबाला हो गया, एंड देन इट वाज डोमिनेटिंग लैंग्वेज, है ना। तो फिर वो फ्रेंच का इन्फ्लुएंस कम हो गया, एंड इंग्लिश वाज डोमिनेटिंग लैंग्वेज, राइट। अब वो चली रही थी। फिर 15th सेंचुरी आते आते एक बहुत बड़ा चेंज आया कि जो ग्रेट वॉवल शिफ्ट थी, एक ग्रेट वॉवल शिफ्ट है, स्मॉल वॉवल शिफ्ट है। तो आपने अगर लिंग्विस्टिक्स में यू मस्ट हैव स्टडीड दैट्स अ ग्रेट वॉवल, मीन्स दैट्स अ ओ, राइट, दैट्स अ ई, यू, डबल डॉट वाले जितने भी फनीम्स होते हैं या साउंड होते हैं, उनकी शिफ्टिंग शॉर्ट में हो गई, है ना। मतलब वो जो लंबा लंबा प्रेस कर कर के बोलते थे, तो नो, जो नई जनरेशन थी, कॉलेज गोअर्स थे, तो दे स्टार्टेड स्पीकिंग शॉर्टिंग स्मॉल वॉवल्स, वो स्मॉल वॉवल्स ज़्यादा यूज़ करने लगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न था कि मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश कहलाने लगी, क्योंकि भाई मॉडर्न, जैसे अभी आपने नए, अभी आज की जनरेशन को सुना होगा, तो वोना वोना, है ना, तो या, यस को वो बोलते हैं या, राइट। तो ये नई जनरेशन है, दिस आर न्यू जनरेशन, एंड एवरी नाउ एंड देन यू मस्ट हैव लिसन न्यू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, जैसे फैंटाबुलस,
fantastic and fabulous, and education, entertainment and education. So these are the words. Every day we listen something new, and then authors and new generation, they coin the words, and there is a parameter. And then I don't have much knowledge, but then number of times, probably 10,000 times, or the journal and books, if you use such words, so it will be the part of dictionary, ऐसा कुछ रहता है, उसका एक ग्राउंड रहता है. तो दैट changes occurred, right? I would like to give you example of in our time, that's a biodata. तो दैट्स अ इनफैक्ट बायोडाटा कहते थे हम. तो डेटा, इट्स अ करेक्ट साउंड इज डेटा. तो हमारे टाइम में यू वांट टू डू जॉब, सो देन यू हैव टू सबमिट योर बायोडाटा, ऐसा बोलते थे. तो देन व्हेन वी केम टू द कॉलेज, देन वी लिसन रेज्यूमे, है ना, एंड नाउ इट्स अ सीवी, करिकुलम वीटे. सो दैट्स अ words are replaced time to time, tone is replaced, way of talking is replaced. And then main reason of modern english, तो अच्छा, modern english is also divided into early modern and late modern. early modern में changes आए, एक great vowel shift एक तो, है ना, और दूसरा चेंज आया इसमें वो था कि टेक्नोलॉजी आने लगी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, और फिर ब्रिटेन का अपना दायरा बढ़ने लगा, साम्राज्य बढ़ने लगा. तो उसके कारण वो इंग्लिश हर जगह बोलने लगे, कॉलोनीज बना के जा जाके बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने लैंड ऑक्यूपाई की. फिर जब मॉडर्न अभी है, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी के कारण रोज़ हम देखते हैं नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, एंड देन इट्स आर नीड ऑफ टाइम दैट वी हैव टू नो, वी हैव टू बी familiar विद न्यू वर्ड्स, न्यू टर्म्स, है ना. तो वो आई, और उसके बाद कल्चरल एक्सचेंज. अब तो हमारे हाथ में फ़ोन है, एंड देन वी कैन लिसन सो मैनी वर्ड्स. इन फैक्ट आई फॉलो सम ऑफ द स्पीकर्स, फॉर एग्जांपल खान सर. तो मुझे बिहारी काफ़ी, उनके मुंह से सुनते सुनते बिहारी के कुछ वर्ड्स आने लगे, उनका टोन आने लगा. तो ऐसे हम अगर देखते हैं, तो पंजाब की एक बबीता मैडम है, उनको मैं सुनती हूँ, तो समटाइम शी यूजेस पंजाबी वर्ड्स, तो दैट आई लिसन एंड आई स्टार्ट स्पीकिंग. समटाइम वो अपने आप ही आ जाता है, नेचुरल कोर्स में आ जाता है. तो दिस इज, एंड मीडिया प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, एंड दैट्स वाई इंग्लिश इज बीइंग एक्सपांडेड along with english, but other languages are also being flourished, but not like english. English is the global language, the most spoken language of the world. So this is something about uh, development of English language, and your queries are always most welcome. Thank you so much. God bless you.